کہ ثانیہ گل پلازا پر قائم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس پیر تک ملتوی ہو گیا۔ کمیشن نے میونسپل کمشنر کو طلب کر لیا۔ اجلاس کے دوران جسٹس آغا فیصل نے ڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید نبی سے واقعے کے وقت سرکاری کردار اور آپریشنل کمانڈ کے بارے میں تفصیلی سوالات کیے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ممتاز جمالی سے۔ جی ممتاز بتائیے گا۔ ثانیہ گل پلازا پر بنائی گئی جوڈیشل کمیشن نے آج بھی کارروائی جاری رکھی۔ آج بھی اجلاس ہوا اور اجلاس کی سربراہی جسٹس آغا فیصل نے کی۔ اس میں آج گل پلازا کی مینجمنٹ کے صدر تنویر پاستہ، ڈپٹی کمشنر جنوبی، ڈی جی ایس بی سی اے، پولیس سرجن اور دیگر نے شرکت کی۔ آج ڈپٹی کمشنر جنوبی نے عدالتی کمیشن کے روبرو پیش ہوئے، جس میں جو دوران اجلاس جسٹس آغا فیصل نے ریمارکس دیے کہ گل پلازا کا سانحہ ابھی جو ہے تازہ ہی تھا کہ گزشتہ رات ایک اور سانحہ ہوا ہے جہاں پر بلڈنگ جو ہے زمین بوس ہو گئی اور 15 لوگ اس میں جہاں بہک ہو گئے۔ جسٹس آغا فیصل نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ 40 سے 50 گز کی عمارت میں گز کے پلاٹ پر اتنی بڑی عمارت کیسے بنائی گئی، کیا کوئی قانون ہے یا ہر کوئی ایسے ہی کام کر رہا ہے۔ عدالتی کمیشن کے سربراہ جسٹس آغا فیصل نے ڈپٹی کمشنر جنوبی سے یہ استفسار کیا کہ آپ کو آگ کی اطلاع کب ملی اور آپ وہاں پر کب پہنچے۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید نبی نے عدالتی کمیشن کے روبرو موقف اختیار کیا کہ سب سے پہلے سرکاری حکام سے وہی تھے جو وہاں پر پہنچے۔ وہ جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو گیٹ نمبر 7 میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر متعلقہ حکام کو اطلاع دی، جس میں فائر فائٹرز، ریسکیو اور دیگر حکام۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ایک گیٹ کے گرل جو ہیں وہ توڑے اور وہاں سے 8 زخمیوں کو جو ہے ہم نے زندہ سلامت نکالا تھا۔ ان کا دوران اجلاس جسٹس آغا فیصل نے ان سے یہ بھی استفسار کیا کہ آپ کی ابتدائی رپورٹ میں کیا تھا کہ گراؤنڈ فلور سے اوپر فلور تک جانے کے لیے کیا راستہ تھا، جس میں ڈپٹی کمشنر جنوبی نے یہ بتایا کہ کیوں رات کا وقت تھا، پلازا بند ہونے والا تھا تو اوپر جانے کا جو راستہ تھا وہ بھی بند تھا، جس پر آغا فیصل نے ریمارکس دیے کہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے لوگ اسی فلور پہ پھنس گئے ہوں، نیچے چونکہ دھواں اڑ رہا تھا اور اموات اس سے ہوئی ہوں، جس پر ڈپٹی کمشنر جنوبی نے کہا کہ ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آج عدالتی کمیشن نے اب یہ اجلاس روز تک ملتوی کر دی ہے اور میونسپل کمشنر کو آئندہ اجلاس کے لیے نوٹسز جو ہے وہ جاری کر دی ہیں۔ جی خبر یہ ہے کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے بڑا اعزاز، نیا رن وے آپریشنل، افتتاحی پرواز کی لینڈنگ، مرکزی رن وے 25R07 الفال۔ اب ایئر بس 3808 طیارے بھی جناح ایئرپورٹ پر لینڈ کر سکیں گے۔ رن وے اپ گریڈیشن 18 ماہ کی ڈیڈ لائن میں مکمل۔ پہلی پرواز کو پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے واٹر سلیوٹ دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں خورشید رحمانی سے۔ خورشید بتائیے گا۔ جی، پاکستان کے شعبہ ہواباز سے ایک اچھی خبر ہے کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے بڑا اعزاز ہے، نیا رن وے آپریشنل ہو گیا ہے۔ افتتاحی پرواز کی لینڈنگ مرکزی رن وے 25R07 جو فال اب ایئر بس 380 طیارے بھی جناح ایئرپورٹ پر لینڈ کر سکیں گے۔ رن وے اپ گریڈیشن 18 ماہ ڈیڈ لائن میں مکمل ہوا ہے، جس پر پہلی پرواز کو پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے واٹر سیلیوٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ پاکستان کے شعبہ ہوابازی میں ایک بڑی اچھی مثبت خبر سامنے آئی کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نیا رن وے آپریشن ہو گیا ہے۔ جی خورشید رحمانی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ خصوصی افراد کے لیے بااختیار روزگار کا نیا دور، وزیر اعلیٰ سندھ نے جدید AI جاب پورٹل کی منظوری دے دی۔ پورٹل سندھی، اردو اور انگریزی میں دستیاب ہوگا۔ شکایات کے اندراج اور حل کا علیحدہ ڈیجیٹل سسٹم متعارف کروایا جائے گا۔ AI ہیڈ جاب پمپنگ اسٹیشن شفافیت اور میرٹ پر بھرتیوں کو یقینی بنائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ خصوصی افراد کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں خورشید رحمانی سے، ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ خورشید بتائیے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈس ایبلٹیز کا اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خصوصی افراد کے لیے AI بیسڈ جاب پورٹل کی منظوری کی ہے۔ اس حوالے سے ترجمان وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ IBS سکر خصوصی افراد کے لیے جاب پورٹل تیار کرے گا۔ خصوصی افراد کی خیرات نہیں بلکہ باعزت طور پر جو ہے وہ روزگار مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا اور یہ بھی کہا کہ یہ ڈیجیٹل انقلابی اقدام خصوصی افراد کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے ایک بڑا قدم ہے۔ خصوصی افراد کا جاب پورٹل سندھی، اردو اور انگریزی زبانوں میں بنایا جائے گا، جبکہ وزیر اعظم نے
हिदायत की है कि जॉब पोर्टल के साथ शिकायत के इंदराज और हल का निज़ाम भी तैयार किया जाए। इस तरह से खुसूसी अफराद के लिए अलहदा डिजिटल ग्रीवेंस रेड सेल सिस्टम भी मुतारिफ करवाया गया है। शिकायत की पूरी अदालत के बगैर कोई निज़ाम मुकम्मल नहीं होता। वज़ीर आज़म सिंध ने ये भी कहा कि खुसूसी अफराद के मसाइल तरजीह बुनियाद पर हल करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म सिंध ने खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जॉब पोर्टल की मंजूरी भी दे दी है। इस जॉब पोर्टल के लिए तमाम खास लोग खुसूसी अफराद को बाअख्तियार बनाना पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरजीह है। इस तरह से जॉब पोर्टल का प्रोटोटाइप इस महीने फरवरी 2026 के आखिर तक तैयार हो जाएगा। जी, खुर्शीद रहमानी अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया। वज़ीर जामियात सिंध इस्माइल राहू की ज़ेर सदारत बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्सेज बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन तमीज़ुद्दीन खेड़ू, सेक्रेटरी मुनव्वर अली मठानी और दीगर शरीक थे। इजलास में अफसरान ने सूबाई वज़ीर को महकमे की कारकर्दगी से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। तफसीलात जानते हैं ज़ुबैर राशिद से, हमारे साथ ही मौजूद हैं। ज़ुबैर, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखिए वज़ीर जामियात सिंध मोहम्मद इस्माइल राहू की ज़ेर सदारत बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन तमीज़ुद्दीन खेड़ो, सेक्रेटरी मुनव्वर अली मठानी और दीगर शरीक थे। इजलास में अफसरान ने सूबाई वज़ीर को महकमे की कारकर्दगी से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफ किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि इदारा 2008 से काम कर रहा है, जबकि 2013 में सिंध असम्बली से बिल की सूरत में इसको बोर्ड का इख्तियार दिया गया, जबकि 2008 से अब तक 5,40,775 से जायद नौजवान बोर्ड में रजिस्टर हो चुके हैं। 4,22,701 पास हुए, जिनमें 1,70,000 से जायद नौजवान रोजगार से लग चुके हैं, जबकि इस इदारे के 41% तरबियत याफ्ता नौजवान दीगर इदारों में रोजगार से मुंसलिक है। मोहम्मद इस्माइल राहू का ये कहना था, जबकि वज़ीर जामियात ने कहा कि इदारा दिहाई और शहरी इलाकों के नौजवानों को जो है मुख्तलिफ इदारों फनी और पेशा वराना तरबियत फराहम कर रहा है। तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को मुतल्लिका इदारों में रोजगार दिलवाने सनती शोबे से मुंसलिक करने के लिए भी इकदाम किए जाते हैं। इदारे का मकसद सूबे के नौजवानों को हुनरमंद बना कर उन्हें बाइज्जत रोजगार के काबिल बनाना है, जबकि नौजवान मुआशी तौर पर खुद मुख्तार हो सकें और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तो सिंध हुकूमत इस इदारे के जरिए गरीब और मुस्तहिक नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम तरबियत फराहम कर रही है। जबकि इस्माइल राहू ने कहा कि 18 से 35 साल उम्र के नौजवानों को दाखिला देकर उन्हें बाकायदा हुनर सिखाया जा रहा है। सिंध के हर जिले के लिए अलहदा कोटा मुकर्रर किया गया है, ताकि तमाम इलाकों के नौजवानों को मसावी मौक़े फराहम किए जा सकें। सिंध हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 5,000 मुस्तहिक ख़वातीन के बच्चों को मुख्तलिफ इदारों में मुफ्त तरबियत दे रही है, जबकि तरबियत हासिल करने वाले पे नौजवान 2,500 रुपये माहाना वजीफा दिया जाता है। तरबियत हासिल करने वालों में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। मोहम्मद इस्माइल राहू का ये कहना था। जी, ठीक है, ज़ुबैर राशिद अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया। सूबाई वज़ीर जामियात बोर्ड्स सिंध मोहम्मद इस्माइल राहू का कहना है कि टेक्निकल तालीम निसाबी तालीम की तरह नहायत ज़रूरी है, क्योंकि मौजूदा दौर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए हुनरमंद नौजवान वक्त की अहम ज़रूरत है और सिंध हुकूमत तलबा की सलाहियतों को निखारने और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइएगा। जी देखिए, सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आज यकीनन टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से एक मीटिंग जो है वो की गई है, और जहां पर सिंध हुकूमत की बात की जाए तो तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ जो टेक्निकल एजुकेशन है इस पर भी काफ़ी जोर जो है वो दिया जा रहा है। जब भी रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, लेकिन अपने दफ्तरों से बाहर निकल के सिंध हुकूमत के जो हमारे वज़रा हैं वो हमें यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। का मकसद भी ज़ाहिर है ये है कि हम ऐसे इदारे को बेहतर से बेहतर तरीके से बनाएं, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी एड्रेस करें, और इनमें जो अगर कोई कोताहियां हैं, कमियां हैं, तो उनको भी हम दूर कर सकें, और बैठ के इनकी सारी ब्रीफिंग ली, ताकि ये इदारा देखें आप इस वक्त सबसे रोज़गार का मसला यूथ का है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पूरे मुल्क के अंदर है, ज़ाहिर है सिंध के अंदर भी है, तो उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, उन बच्चों को एंगेज कर सकते हैं, उन बच्चों को एम्प्लॉय कर सकते हैं हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर। वो तब होगा जब उनको स्किल होगा, जब उनको टेक्निकल एजुकेशन होगी, उनको हुनर आता होगा, तब कर सकेंगे। और वो उस सिमत में ये इदारा बहुत बड़ा काम कर रहा है, जबकि आपको पता है कि हर
साल 30,000 बच्चे 45% फीमेल्स हैं ट्रेनिंग हासिल करते हैं, वो यहाँ मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर भी जाके रोजगार से लगते हैं। तो और फिर फकत ये फ्रीली आप अंदाजा कर लें कि ये फ्रीली ही नहीं ट्रेनिंग मुहैया करवाता देता, लेकिन इंसेंटिव भी हम देते हैं बच्चों को, ताकि वो बच्चे जो उनको दोनों तरफ से अट्रैक्शन हो, एक ये कि वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और हुनर हासिल कर रहे हैं, स्किल उनको मिल रहा है। कमियों को दूर किया जाएगा। सूबाई वजीर इस्माइल राहू इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी, सूबाई वजीर सईद गनी और डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद का सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल चर्च का दौरा, बशबीनी मारियो ट्रेविस से मुलाकात की, वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। तफसीलात जान लेते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। जी, सीनियर सूबाई वजीर सईद गनी और डिप्टी स्पीकर असेंबली एंथनी नवीद का सेंट पैट्रिक कैथेड्रल चर्च का दौरा है। सईद गनी की डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद पर हमरा बिशप बेनी मारियो ट्रेविस से मुलाकात हुई है। सूबाई वजीर सईद गनी ने और डिप्टी स्पीकर बिशप बेनी ट्रेविस की वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। इस मौके पर सूबाई वजीर ने उनकी वालदा के लिए दुआ मग़फ़िरत की है और ये कहा कि अल्लाह ताला इनके अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। ठीक है, खुर्शीद रहमानी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सोने और चांदी की कीमतें आसमान पर। फी तोला सोना 7,900 रुपये महंगा, कीमत 5,23,962 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 6,773 रुपये इजाफे से 4,49,212 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 358 रुपये इजाफे से 8,404 रुपये में दस्तयाब। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा। यहाँ पे देखा जा रहा है कि सरमायाकार की जानिब से एक बार फिर आलमी मार्केट में सोने की खरीदारी देखी जा रही है। आलमी मार्केट में सोना $79 महंगा होकर $5,012 फी औंस पर पहुँच गया। इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार में हुआ है, जिसे 24 कैरेट का एक तोला सोना 7,900 रुपये इजाफा होकर जो है 5,23,962 रुपये पर पहुँच गया। साथ ही देखा जाए 10 ग्राम सोने की कीमत जो है 6,773 रुपये इजाफे से 4,49,212 रुपये पर पहुँच गया, जबकि एक तोला चांदी की कीमत एक ही दिन में 358 रुपये इजाफे से 8,404 रुपये पर पहुँच गया। सराफा डीलर का कहना है कि आलमी मार्केट में जैसा एक बार फिर तेजी देखी जा रही है, उसके असरात पर पाकिस्तान में भी सोने और चांदी की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। जो अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के गहरे बादल छा गए। साल 2026 की सबसे बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश, आगाह कीजिएगा इससे मुताल्लिक़। मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का चौथा दिन था और आज साल 2026 की सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स में एक दिन में 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गए हैं और इंडेक्स ने एक ही दिन में 7 नफसियाती हदें भी गंवाई हैं। क्या वजूहत है? सरमाएकार क्यों इतने मोहतात नज़र आते हैं कि एक ही दिन में मार्केट में 7,000 पॉइंट्स कम हो गए, 6,000 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी पर कारोबार का इख्तिताम हुआ? जिमरान भी बताइएगा क्या मामला है। देखिए, गुज़िश्ता कुछ दिनों से मंदी का रुझान आप देख रहे थे। कल एक अच्छी रिकवरी आपने देखा कि तकरीबन 5,000 से ज़ायद पॉइंट की रिकवरी देखी गई और मेन जो वजह जो है म्यूचुअल फ़ंड और दीगर फ़ंड की तरफ से सेलिंग कहा जा रहा है और साथ साथ ईरान और USA का जो टेंशन है उसमें कशीदगी मज़ीद बढ़ गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 7,000 ज़ायद पॉइंट की जो मंदी देखी गई। क्योंकि रमज़ान का पहला दिन है, थोड़ी एक्टिविटी कम होती है और बैंक भी आज क्लोज़ हैं, तो इसकी वजह से भी थोड़ी वॉल्यूम कम नज़र आए। साल 2026 की सबसे बड़ी मंदी कहा जी, बिल्कुल। ये अगर कहा जाए 2026 की पहली मंदी है, जो तकरीबन 7,000 पॉइंट की मंदी हुई थी, तो ये तकरीबन साल 2026 की पहली मंदी है। ठीक है, जिमरान मौजूद थे, बता रहे हैं कि सरमायाकार मोहतात हैं, सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखा जा रहा है जिसकी वजह से करेक्शन है। साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है उसका भी एक मार्केट पर इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि सरमायाकार मोहतात नज़र आते हैं। जी, जाम सादिक पुल के फुटपाथ में मौजूद इलेक्ट्रिक वायर को पुल के नीचे शिफ्ट कर दिया गया। पुल को मिसमार करने का काम जारी है। कयूमाबाद से कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ने वाले जाम सादिक पुल के मिसमारी का काम अक्टूबर में शुरू किया गया था। आरसी तौर पर ताज हैदर ब्रिज को इस्तेमाल किया जा रहा है। जाम सादिक ब्रिज की हिफाजती दीवारों को गिराया जा चुका है। मजीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा। जाम सादिक ब्रिज पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जिसकी मसमारी का सिलसिला जो है वो गुज़िश्ता 2 माह से देखा जा रहा है। अब रमज़ान मुबारक का महीना भी जो वो शुरू हो चुका है, लेकिन इस वक्त जो है वो काम जो है वो इस पर काफ़ी सुस्त रवि का शिकार देखा जा रहा है। वजूहात जो है वो सामने नहीं आई है। चंद वजूहात के बायस जो है वो अक्टूबर के महीने में इसका काम जैसा कि रोका गया था। यूटिलिटी वायर्स के इलेक्ट्रिक के जो वायर्स थे उनका जो है वो बड़ा मसला सामने आया था, लेकिन अब उनकी शिफ्टिंग का सिलसिला भी जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो यहाँ से हो चुका है। लेकिन जो पुल की मसमारी का सिलसिला है वो अब तक जो है वो ताखिर का शिकार है, सुस्त रवि का शिकार
सरकार है जो एतराफ़ की हिफाजती दीवारें थी पुल की वो गिरा दी हैं, लेकिन जो अब तक मेन पॉइंट जो पुल को मस्मार करना है और पुल नया तामीर करना है उसका काम जो वो शुरू नहीं हुआ। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट शर्जीना मेमन ने कहा था कि इसको जो वो जल्द मस्मार किया जाएगा ताकि नया पुल तामीर हो। और जो ताज हैदर ब्रिज है जिस पे कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को जो वो जोड़ा जा रहा है, उस ब्रिज पे जो है वो वापस BRT येलो लाइन का जो वो काम शुरू होगा और जो अवामी ट्रैफिक है उसको, पब्लिक ट्रैफिक है उसको वापस जो है वो जाम सादिक के ब्रिज पर जो है वो लाया जाएगा। लेकिन अब तक इसकी मस्मारी का सिलसिला जो हम देख रहे हैं काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। क्रेन्स यहाँ पर मौजूद है, गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, अमला भी यहाँ पर मौजूद है, पर काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। आगे जाने की परमिशन जो वो नहीं है क्योंकि अब पुल की मस्मारी का काम है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं और डेंजरस जोन में भी जो वो आ चुका है। लेकिन ताहाल जो है वो कयूमाबाद कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ने के लिए BRT येलो लाइन का ताज हैदर ब्रिज जो है वो इस वक्त अपना किरदार अदा कर रहा है, जबकि इसमें जो हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल तौर पर जो चंद वजूहात के बायस काम सुस्त रवि का शिकार देखा जा रहा है। जी, शहर कायद में गैस मसाइल हल ना हो सके। सहरी के वक्त शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रेलवे कॉलोनी के रिहायशियों का कहना है कि सहरी में गैस सिर्फ 15 से 20 मिनट तक रही, प्रेशर इंतहाई कम था। खाना होटलों से ख़रीदना पड़ा है, महंगे सिलेंडर भरवाने पड़ते हैं, महीने में 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च आता है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा रिमशा इस्माइल से। रिमशा बताइएगा। तो शहर कायद में मसाइल के अंबार हैं। आज जो है वो पहला रमज़ान है और हम देख रहे हैं कि अभी भी कराची में जो है वो शहरियों को गैस मसाइल से का सामना करना पड़ रहा है। सुई सदरन की जानिब से रात 3 से सुबह 9 बजे तक गैस की फराहमी को यकीनी बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि शहरी के औकात में जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शहरी जो है वो बाहर होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर है। रिहायशी इस वक्त मैं रेलवे कॉलोनी में मौजूद हूं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताएगा, आज पहला रोज़ा था, सुई सदरुन की जानिब से गैस दिया जा रहा है, आप मुझे बताएं आपको गैस के मसाइल का सामना करना पड़ा आज शहरी में? बिल्कुल, गैस का मसला बहुत अरसे से आज शहरी में भी गैस आया था, मगर तकरीबन 10 से 15 मिनट था, उसके बाद गैस नहीं आया। मतलब बहुत अरसा हो गया, 2-3 साल होने को आ रहे हैं कि हर जो है ना सिटी रेलवे कॉलोनी का जो बंदा है वो सिलेंडर भरता है। आज शहरी में कितने मिनट तक गैस आया? तकरीबन 15 से 20 मिनट। और कार में गुज़श्ता साल में भी आपको क्या सामना करना पड़ा था? अफ्तारी और शहरी में भी इसी तरह मसाइल का? बिल्कुल मसाइल थे, हम लोग सिलेंडर भरते थे पिछले साल भी और इस साल भी ये सिलेंडर, बहुत अरसे से सिलेंडर पे काम चल रहा है। मुझे ये बताएं कि कहते हैं कि बिल अदा नहीं किए जाते, क्या बिल पूरे आते हैं और फिर गैस कम आता है? बिल तो डबल आते हैं, लेकिन गैस तो बिल्कुल हमने देखा ही नहीं है कि गैस कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। खाना बाहर से लाना पड़ता है होटलों से? बिल्कुल बाहर से हम लाते। मुझे ये बताइएगा, जो है सिलेंडर भरवाते हैं उसका भी खर्चा होता है, कितना खर्चा हो जाता है? महीने में कितनी बार गैस सिलेंडर भरवाते हैं? मतलब मैं तो अपना सिलेंडर हफ्ते में 2-3 किलो भरता हूँ, तो यही 8-9 हज़ार रुपये, 10 हज़ार ऐसे मतलब खर्चा आ जाता है महीने का। बिल्कुल 8 से 9 हज़ार जो है वो खर्चा जो है वो आता है। और शहरियों का यही कहना है कि आज पहला रमज़ान था, उसके बावजूद भी जो है गैस जो है 15 से 20 मिनट आया और उन्हें जो है बाहर से खाना खरीदना पड़ा। जी, खबर आपको देखे पाकिस्तानी निज़ाद बंगालियों के लिए अल-खिदमत ट्रस्ट पाकिस्तान की जानिब से माह सियाम के लिए राशन तकसीम किया गया। राशन के बॉक्स में आटा, दालें, घी, चावल और दीगर अशियाए ज़रूरिया रखी गई। चेयरपर्सन नवीदा अनीस का कहना है कि हम बर्मी मुस्लिम महाजरीन के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, सेहत की सहूलियात और साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात के लिए काम कर रहे हैं। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। रमज़ान मुबारक में खिदमत का जज्बा अल-खिदमत ट्रस्ट मुस्तहकीन में राशन की तकसीम में पेश। अल-खिदमत ट्रस्ट पाकिस्तान की जानिब से बिन कासिम मस्जिद में पाकिस्तानी नजाद बंगाली खानदानों के लिए राशन ड्राइव तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके तहत 1000 से ज़ायद घरानों में अशियाए ज़रूरियात तकसीम की जा रही हैं। अल-खिदमत ट्रस्ट पाकिस्तान की चेयरपर्सन नवीदा अनीस ने कहा कि हर साल माह रमज़ान में इसी तरह मुस्तहक खानदानों की मदद की जाती है और इस साल भी 1000 घराने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन खवातीन को फोकस हम करते हैं कि जो ना अपनी कमाई खुद करने की कोई सलाहियत रखती हैं और ना उनकी कोई कमा कर देने वाला होता है, बेवा खवातीन। जमात इस्लामी कोरंगी के अमीर मंसूर फिरोज ने बताया कि मकामी पाकिस्तानी निजात बंगालियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, तिब्बी सहूलियात और फिल्टर पानी की फराहमी का सिलसिला जारी है। पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट भी मौजूद है। इसी तरह हर साल रमज़ानों से पहले हम एक बड़ी तादाद में जहाँ के जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं
तकरीबन 1000 खानदान उन तक हम राशन पहुँचाते हैं अलखिदमत के ताउन से। राशन बॉक्स में आटा, दालें, घी, चावल और दीगर अशिया ज़रूरियात शामिल हैं ताकि मुस्तहिक खानदानों को रमज़ान में सहूलत मैसर आ सके। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। असिस्टेंट कमिश्नर का शॉपिंग मार्ट के अंदर कायम कमिश्नर कराची काउंटर का दौरा। हुमैरा अहमद कुरैशी की एशिया खुर्दनोश के मुआयने के साथ खरीदारों से गुफ्तगू। कहा कि रमज़ान काउंटर में एशिया खुर्दनोश सरकारी निर्खों पर फ्राहम की जा रही हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। रिजवान बताइए। माह सयाम में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के हवाले से कमिश्नर कराची ने जो है वो काफ़ी इकदाम किए हैं, जिसमें सबसे अहम इकदाम जो है वो ये है कि जितने भी मार्ट हैं शहर में वहाँ पे स्पेशल काउंटर कायम कर दिए गए हैं जहाँ अशिया खुर्दनोश आवाम को सरकारी नरगों पर दस्तियाब हैं। ब्लॉक एच नॉर्थ नाजिबाबाद से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ एक मार्ट के अंदर से जहाँ पे ऐसा काउंटर कायम है और इसकी निगरानी कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न नॉर्थ नाजिबाबाद हुमैरा अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुमैरा साहब। बताइएगा कितना रिलीफ मिल सका है इस काउंटर से आवाम को, कब तक मिलेगा? ये तमाम मार्ट्स पूरे कराची में बशमूल नॉर्थ नाजिबाबाद में लगाए गए हैं ताकि सरकारी रेट्स के मुताबिक चीज़ें सुपर मार्ट्स के अंदर भी दस्तियाब हों। इसमें आवाम को भरपूर रिलीफ दिया जा रहा है क्योंकि सरकारी रेट्स के मुताबिक यहाँ पे सरकारी प्राइस लिस्टें आवेज़ा की गई हैं और सरकारी प्राइस लिस्टों को देखते हुए आम आदमी अपनी शॉपिंग सुपर मार्ट्स के ज़रिए भी कर सकता है और ये यकीनी बना सकता है कि उसको नाजायज़ मुनाफाखोरी से वो बच सके। अच्छा, ये भी बताइएगा मुझे कि बाहर जो है वो रेट कुछ और हैं, अंदर कुछ और हैं, तो क्या वजह है कि आम घर के डोर स्टेप पर जो है आवाम को अशिया खुर्दनोश सरकारी नरखों पर नहीं मिल पाती हैं, उसके लिए क्या इकदाम करें? आम तौर पे ये तासुर दिया जाता है कि सुपर मार्ट्स जो हैं वो सुपर एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन आप देखें सुपर मार्ट्स के अंदर भी हमने यकीनी बनाया है कि माह रमज़ान में चीज़ें लोगों को सरकारी रेट्स के ऊपर दस्तियाब हों। सिमिलरली हम इंश्योर कर रहे हैं कि बाहर रोड साइड के ऊपर भी जो शॉपिंग की जा रही है वहाँ पर भी सरकारी रेट्स को नफाज किया जाए और सरकारी रेट्स के नफाज करने के लिए हर मुमकिन जो इंतजामी तदबीर है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, ये सब डिवीज़न तो आपका बहुत बड़ा है और सारी ये जिम्मेदारी प्राइस चेकिंग की आपके कंधों पर आ गई है। कितना इजाफी स्टाफ इस हवाले से आपको दस्तियाब है और किस तरह मैनेज करेंगे? गवर्नमेंट ने हमें रिसोर्सेज और मेन पावर से वेल इक्विप्ड किया है। एज फार एज नॉर्थ नाजिबाबाद इज कंसर्न तो यहाँ पे टाउन एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें कुछ मेन पावर दिया गया है। इसके अलावा कमिश्नर कराची साहब ने हमें कुछ प्राइस मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो SNGD से भी हमें दिलवाए हैं, जिसके ज़रिए हम इंश्योर करेंगे कि हर मार्केट पे हम हर कंप्लेंट पर प्रॉम्प्टली पहुँच सकें और हर कंप्लेंट को हम विजिबली तौर पर उसको रिजॉल्व करवा सकें। बिल्कुल, शिकंजा जो है इंतज़ामिया ने सख्त कर दिया है इस रमज़ान में गिरां फरोशों पर और कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि इस किस्म के मार्ट जो है उनका इजाफा कर दिया गया है बल्कि इसके साथ साथ इजाफी अमला भी जो है इख्तियारात के साथ तैनात कर दिया गया है, तो गिरां फरोशी जो है इस मरतबा शायद ना चल सके और आवाम को रिलीफ मिले। जी। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की जानिब से माह सियाम में रोज़ादारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर निसार अहमद कहते हैं कि इफ्तार की पैकिंग की तैयारी सुबह से शुरू हो जाती है। दोपहर के बाद उसे मुख्तलिफ मकामात तक पहुँचाया जाता है। शहर के मुख्तलिफ मदारस में भी इफ्तारी और खाना फ्राहम किया जाता है। हमारा निज़ाम बड़ा शफाफ है। माह सियाम से कब लिस्टें बनना शुरू हो जाती हैं। मज़ीद जानते हैं खुर्शीद रहमानी से जो इस वक्त आलमगीर ट्रस्ट इंटरनेशनल के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। खुर्शीद बताइएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद में आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो माह सयाम का आगाज़ हो चुका है, रहमतों बरकतों और फजल वाला जो महीना है, इस हवाले से आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो अफ्तार और जो है वो मुख्तलिफ जो मदारिस हैं उनको भी देता है और शहरियों को भी अफ्तार का सिलसिला जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला होता है। इस वक्त भी अफ्तार की जो पैकिंग है वो आप मेरे रकम में आप देख सकते हैं किस तरह से आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के जो कारकुनान हैं वो किस तरह से अफ्तारी की पैकिंग कर रहे हैं और इस तमाम मौज़ूआत पर जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इजहार साहब जो इसके ट्रस्टी हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो इस मौके पर क्या कहेंगे और ये जो तकसीम का जो सिलसिला है इसको किस तरह से अंजाम देते हैं। एक बहुत बड़ा काम है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इस अफ्तार की तकसीम के हवाले से? देखिए, रमज़ान मुबारक जैसे आपने भी फरमाया कि नेकियों का मौसम बहार है, तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट गुज़िश्ता 30 सालों से ज़ायद अरसे से हज़ारों की तादाद में रोज़ाना ये अफ्तार बॉक्सेस और खाना तकसीम करता है। इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में कराची से चित्राल तक हज़ारों बॉक्सेस तकसीम होते हैं और इन शहरों में बदीन, मातली, संझोरो, सांगड़, हाला, मटियारी, भागनाड़ी, औस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान के अजला, जैकबाबाद और इस्लामाबाद, चित्राल, गिलगित और इसके साथ साथ
जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं या GT रोड के साथ जो शहर हैं, झंग हो गया, अटक हो गया और दीगर जितने शहर, यहाँ पर रोज़ाना रमज़ान मुबारक के दिनों में इफ्तार तक़सीम हो रहा है। ज़ाहिर है इसके हवाले से हमें अपने डोनर्स के ताउन की हमेशा ज़रूरत रहती है और ये उन्हीं अल्लाह ताला के फजल के बाद उन्हीं का सिलसिला है कि हमें उनकी मदद से हम ये काम कर पा रहे हैं। ये पूरी अफ्तार की पैकिंग और खाने की पैकिंग का सिलसिला जो है वो ये सुबह से ही शुरू हो जाता है और नमाज ज़ोहर के बाद इसकी तकसीम का सिलसिला जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उसकी तरसील जो है वो की जाती है। और ये जो तरीका है अफ्तार की तकसीम का, ये बड़ा ट्रांसपेरेंट है, बहुत रीस्ट्रक्चरिंग है और ये रमज़ान से कबल ही इसकी स्क्रूटनी शुरू हो जाती है। और इस सिलसिले में आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की जो तमाम कारकुनान हैं वो इस बात के मुस्तहक है, मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, नेकियों के मुस्तहक हैं कि वो इस कार्य खैर में अपना हिस्सा बढ़ाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर ख़ास व आम शहरी को माह सयाम में अफ्तार के सिलसिले में लोगों की मदद करनी चाहिए और अफ्तार करवानी चाहिए। जी।